So once you understand things, everything is written in books. So you need to understand. मेरा पढ़ाने का आइडिया यही है कि कंसेप्चुअली चीजें समझ में आए. अगर कंसेप्चुअली तुमको समझ में आएंगी, then you can follow any study material. And this material जो मैं बनाया हूँ, this will be available to you later on. So you don't need to much worry about that. So हम लोगों ने जैसे बोला था कि हम लोग पहला यूनिट से शुरू करेंगे एंड वी विल स्टडी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स. इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में हम लोगों ने कुछ कुछ डिस्कशन भी किया. We discussed a lot of general thing in previous class. I recommend you to attend classes regularly, and attending classes, if you properly listen it will serve the purpose. So we are starting with first unit, electronic material, and with very first discussing free electron theory. What is free electron theory? We were already talking about it. And there are 5 units, and there is time assigned to it. The important thing is that this material, which is I'm supposed to teach you in 10 hours, I may continue teaching it for months, because these topics are involved. There are a lot of things, but for your course, for your understanding, you don't need to go to that deeper knowledge, because you're not going to do research in physics. Your specialization is computer science, but these things are important to know. So we will cover as much important for you. I'm not going to detail what I know about these topics. I will be teaching you what you need to know. तो हम लोग बेसिकली जैसे 10 घंटे में हमको इतना सब कुछ पढ़ना है, तो वी विल ट्राई टू टच एवरीथिंग, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो ऐसा करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. अगर जो जैसे बुक्स अवेलेबल है, एंड आई आल्सो शेयर्ड वन ऑफ द MOOC कोर्स इन योर ग्रुप that was by Senoy from IIT Delhi. He is teaching optoelectronics course. So a lot of things in your course is similar to what he is teaching. If any of you have seen these lectures, maybe he's an IT professor and he teach. I'm sure he's better than me, because I'm a new person, and he has an experience more than 30 years, and he's an IT. So you can always refer to his lectures, given the you understand things. If you don't understand, if you have some questions, I'm always there to help you within my capacity. I don't claim कि मुझे सब कुछ आता है, but अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछोगे, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, and I'm sure that I will give you answer. So that is one thing. तो वहाँ पे भी कुछ लेक्चर्स है जो ऑनलाइन रिसोर्सेज दे सकते हैं, एंड देयर विल बी सम बुक्स. आई विल आल्सो recommend or share some books to you if you want to go, you want to understand in detail. But things in books are in MOOC courses are given in much more detail. That much detail is not easy to understand for you at this level. 10+2 करके आए हैं. If he is teaching BTech higher level courses, so you don't understand in first year. So first year में हम लोग थोड़ा basics ही समझेंगे. Today again we have more than 75 people in the class, so it is okay. तो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे. मैं जो पढ़ाऊंगा तो एक तरह से बेसिक जो हम लोग 10th-12th में पढ़ा है उसको कनेक्ट करके आगे पढ़ाने का कोशिश करूंगा, and I'm sure you will understand things. तो this is syllabus. अलग अलग यूनिट है, किसी में 6 घंटे में कराना है, किसी को 12 घंटे में कराना है. There are a lot of things. So we have 40 hours of extensive teaching. In that 40 hours I have to cover all this syllabus. तो हम लोग बात कर रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, और इफ यू रिमेम्बर पहले दिन में काफी सारा जनरल बातें किया. जनरल बातों में मैंने ये बोला कि कुछ एक ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जहां पे हम लोगों को हमने देखा कि कुछ मटेरियल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हैं और कुछ नॉन कंडक्टिव हैं.
ये एक बहुत जनरल सा ऑब्जर्वेशन है। कोई जब कुछ भी फिजिक्स नहीं जानता तभी भी इस चीज को वो महसूस करेगा कि कुछ कंडक्टर हैं, कुछ नॉन कंडक्टर। फिर बाद में पता चला कि जनरली जो मेटल्स है, उनको हिंदी में बोलते हैं धातु, तो जो मेटल्स है दे आर गुड कंडक्टर्स। तो ऐसा क्यों हुआ है, मेटल्स क्यों गुड कंडक्टर? फिर हमने बोला कि चार्ज कैरियर्स, करंट जो होता है बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो फ्लो होगा उनका। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड है तो फ्लो ही नहीं होगा। तो एक और चीज समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन प्लेज की रोल इन डिसाइडिंग इज समथिंग इज कंडक्टिव और नॉट कंडक्टिव। एट दिस स्टेज वी डोंट हैव एन आइडिया ऑफ सेमीकंडक्टर, हमको अभी पता नहीं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। मैंने बोला फिजिक्स में दो तरह से काम होता है, एक लोग थ्योरी करते हैं, एक लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन कि कुछ कंडक्टर हैं, कुछ नॉन कंडक्टर हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज समथिंग व्हिच इज कंडक्टिंग, समथिंग इज नॉट कंडक्टिंग। So we need to develop a theory. So this is the first theory, very first theory. सबसे पहले कोई ऐसा थ्योरी प्रपोज किया गया, तो दिस वाज फुल इलेक्ट्रॉन थ्योरी। मैंने ये भी बोला कि थ्योरी कोई भी बना सकता है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक थ्योरीज, लाइक इन टुडेज वर्ल्ड यू सी, इफ आई कंपेयर, एक थोड़ा सा जनरल सा एग्जांपल है मैं, लेकिन एग्जांपल से तुमको कनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। Like in today's world, you see there is a pandemic, COVID-19 pandemic, a lot of things are going on. So there will be people who say this doesn't exist, कोरोना होता ही नहीं है, लोग ऐसे भी घूम रहे हैं, मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, कुछ फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, they say ये होता ही नहीं। बट दिस इज अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन। तो अगर वो कितना भी तुमको थ्योरी दें कि ये नहीं नहीं होता है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, but the reality is that there are people who are dying because of this illness. There are number of scientific evidence that there are people who are affected by this virus. This virus is real. So this is an experimental observation. This is the reality. तो तुम्हारा थ्योरी कितना अच्छा है कि कोरोना नहीं है, तुम्हारी थ्योरी से वो रियलिटी बदल नहीं जाएगा। Similarly, when we are making any theory in physics to explain things, so it should be able to explain the reality. If it explains the reality, then theory is good. If it doesn't explain the reality, then कितना भी अच्छी theory है, वो काम का नहीं। So similarly, when we try to explain some phenomena in physics, then we are free to do some assumptions because we don't know about it. अगर हमको किसी के बारे में पता नहीं है तो हम कुछ assumptions बनाएंगे, लेकिन वो assumptions के बाद में जब थ्योरी हमारा फाइनल बन के आएगा तो फाइनल का अल्टीमेट थ्योरी का अल्टीमेट टेस्ट ये होगा कि वो रियलिटी को एक्सप्लेन करे, जो हमारे आसपास जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करे, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज द बेस्ट थिंग। ये मैं तुम लोगों को लास्ट में बार समझाया कि आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नोबेल प्राइज मिला और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नहीं मिला। उसका रीजन ये था कि उस टाइम पे कोई ऐसा टेक्निक नहीं था जिससे उनका थ्योरी को प्रूव किया जा सके कि ये थ्योरी सही है। थ्योरी अलग था, लेटर ऑन इट वाज प्रूव, बट एट दैट टाइम देयर वाज नो टेक्निक टू प्रूव इट, सो ही डिडंट गेट नोबेल प्राइज फॉर दैट, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर these metals are solids which are conductive, or there are some which are not conductive. What is the reason for that? So अभी हम लोग उसमें क्या किया, एक Drude was a scientist who developed this theory, and later on Lorentz helped it to develop it and more to explain it in a better way. So that is why it is also called Drude-Lorentz theory. और मैं तुम लोगों को लास्ट बार बताया था कि फिजिक्स में एक क्लासिकल फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स के बीच में डिफरेंस है कुछ। क्वांटम मैकेनिक्स के टूल्स अलग हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के टूल्स अलग है। क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं कि न्यूटन का एक जो इरा है, न्यूटन ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, एंड एट दैट टाइम पीपल वर थिंकिंग दैट वाओ वी नो एवरीथिंग नाउ। But later on, when Einstein gave theory of relativity, when a lot of other things came in,
जो लोगों ने और एक्सपेरिमेंट किए और लोगों ने देखा कि न्यूटन का थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, हमें भी सब कुछ जान नहीं गए हैं, देयर आर स्टिल थिंग्स टू बी नोन। सो देयर कम्स क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स भी अभी सब कुछ नहीं जानता है। फिजिक्स में या साइंस में ब्यूटी यही है कि वी डोंट से दैट वी नो एवरीथिंग, we say that we are trying to understand, and we believe in the experiment, in the evidence, in the logic. So that is why science is different than other streams, because here we believe in logic, we think and we observe and we see some correlation, we see some symmetry, क्यों ऐसे हो रहा है। तो इसलिए फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हमको नए तरीके से सोचने के टेक्निक्स देता है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक अगर अच्छे से किसी को फिजिक्स पढ़ाया जाए तो उसको फिजिक्स बहुत अच्छा लगेगा। और इट डिपेंड्स ऑन आवर टीचर्स, हमको कैसे टीचर मिलते हैं, तो इस वजह से हमको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा नहीं लगता, बट इट इज ओके, इट इज नॉट पॉसिबल कि सब कोई फिजिक्स ही पढ़ेगा, बट देयर आर सम ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो अभी हम लोग फिर से बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक पहला अटेम्प्ट था जिसमें ड्रूट और लॉरेंज ने मिलकर एक थ्योरी दिया। तो ये थ्योरी जो है क्लासिकल थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी नहीं है। क्वांटम थ्योरी इसके बाद आएगा। तो हम लोग अभी सबसे पहले क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी समझेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू लर्न क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। दोनों तरह की थ्योरी को हम लोग सीखेंगे। और ये थ्योरी हम लोग क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम ये समझना चाह रहे हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, तो क्या होता है, क्यों कंडक्टर, हमको नहीं पता था। तो देयर इज एन अटेम्प्ट बाय ड्रूड एंड लॉरेंज, लेट अस ट्राई व्हाट दे डिड। जैसे मैंने पहले बोला, जब हमको कोई थ्योरी बताना होता है तो वी कैन मेक सब assumptions because we don't know what is going on। तो हमको जो पता है उससे हम कुछ assumptions बनाते हैं और फिर उसको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में टेस्ट करते हैं। अगर वो सही है तो कहते हैं हमारा थ्योरी कुछ कुछ चीजें सही बता पा रहा है, और नहीं है सही है तो हमारा थ्योरी काम का नहीं है, थ्योरी हमारा गड़बड़ है, हम उसको सही करने का प्रयास करते हैं। सो दिस इज जनरल टेक्निक इन फिजिक्स। नाउ अब हम लोग इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि ये क्या था। ये एक समरी जैसे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए मेटल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are free to move about in the crystal like molecules of gas in the container। हुआ क्या, थर्मोडायनेमिक्स लोगों को पहले से पता था, ये जो हीट इंजन वीट इंजन ये सब चीजें थोड़ा सा आगे आ गया था। तो थर्मोडायनेमिक्स का अंडरस्टैंडिंग लोगों के दिमाग में था। गैस कोई डब्बे में भरा है तो उसका प्रेशर कैसे होता है, टेम्परेचर कैसे होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल वर नोइंग एट दैट टाइम। सो व्हाट हैपेंड व्हेन दिस क्वेश्चन केम, तो ड्रूड ने क्या कहा कि जो मेटल है, मेटल जैसे कोई लोहे का टुकड़ा ले ले, लोहे का टुकड़ा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो उन्होंने कहा कि मेटल जो है, लोहे का जो टुकड़ा है, उसको हम ये ट्रीट करेंगे कि एक डब्बा है जिसमें गैस भरा है, जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते थे कि अगर कोई बॉक्स में गैस है तो गैस के नेचर को हम उस समय पहले से जान रहे थे। तो ही एज्यूम दैट जो लोहे का टुकड़ा है उसका कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, और बोल रहे कि वो इलेक्ट्रॉन उसमें फ्रीली घूम सकते हैं। He assumed that this is not a reality, we know it is not a डब्बा, it is a solid thing। लेकिन उन्होंने एक सिमिलरिटी डेवलप किया कि एक बॉक्स है, एक कंटेनर है जिसमें कुछ गैस भरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे, क्योंकि हम उस बॉक्स के अंदर गैस के बिहेवियर को समझते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जो मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्रीली घूम सकते हैं। अब हम लोग को ये पता है कि मेटल में जनरली आउटर सेल में एक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इजीली, जिनको थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाए तो वो बाहर वाला सेल छोड़ के चले जाते हैं, तो फ्री हो जाते हैं। तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो हो गए, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनेंगे, ये हम लोग अभी समझ रहे हैं। बट एट दैट टाइम व्हाट ही सेड, ही एज्यूम दैट ए मेटल का एक टुकड़ा जो है वो एक कंटेनर की तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं। जैसे हम लोग कंटेनर में गैस भरा जानते हैं, ऐसे उन्होंने कहा मेटल का टुकड़ा ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम सकते हैं। दिस वाज हिज अजम्पशन।
he can make any assumption as of now, but later on it should be able to explain the reality. That is the technique in physics. फिर क्या किया? He said mutual repulsion between electron is ignored, hence potential energy is taken as zero. अब दो इलेक्ट्रॉन हैं तो हम लोग को ये तो पता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को पास नहीं आने देंगे, जबकि गैस के मॉलिक्यूल में ऐसा जनरली नहीं होगा। गैस के मॉलिक्यूल तो कोई चार्ज पार्टिकल है नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बीच का जो रिपल्सन है उसको बोलिए कि हम मान रहे हैं कि उनके बीच में कोई रिपल्सन नहीं है, जबकि यह रियलिटी नहीं है। बट ही वाज अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट अस से you assume anything but you explain what is going on. तो he assumed this and said potential energy is zero. जब हम लोग उसका म्यूचुअल रिपल्सन नहीं मान रहे तो माने के पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो हो गया। फिर क्या हुआ? तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है नहीं तो जो भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब मेटल का जो टुकड़ा था उसको बोला कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भरे हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से घूम रहे हैं। तो इट बिकेम सिमिलर टू एक कंटेनर में गैस भरा है और गैस में काइनेटिक एनर्जी है, गैस आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे तुम लोगों ने परफेक्ट गैस ये सब मॉडल पढ़ा है 12th में, तो देयर यू सी दिस परफेक्ट गैस मॉडल। वहां पे कुछ ऐसे एग्जम्पशंस होते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल आपस में अज्यूम नहीं करते, गैस के मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं है। तो वो चीज ड्रूड पहले से जानते थे। तो ड्रूड ने क्या किया? वो अपना जाना वाला मॉडल यहाँ पे सेट करने का कोशिश किया। And that is how we do things, because there is something which we don't know, then what we know. जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो 10th 12th में क्या पढ़ा है उसको बेस मान के आगे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कुछ एकदम नया शुरू किया। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उनको वो पता था इसलिए उन्होंने ये मॉडल ऐसे बनाया। तो अभी क्या हो गया? कोई जो मेटल का टुकड़ा है, ड्रूड के लिए वो मेटल का टुकड़ा एक कंटेनर हो गया और उस कंटेनर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भरे हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकते हैं क्योंकि वो फ्री हैं और उनका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, आपस में वो इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं और जितना भी एनर्जी उनके पास है वो सब उनकी काइनेटिक एनर्जी है। इतना ड्रूड ने मान लिया। अब मानने से हुआ क्या? ये तो माना, उसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हमको अभी पता है गलत है, ऐसे मानना नहीं चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने माना है तो लेट अस सी कि वो क्या एक्सप्लेन कर पाए। So therefore this model provides satisfactory explanation for certain properties. कुछ चीजें ये मॉडल एक्सप्लेन कर दिया, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, लेकिन कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कुछ सॉलिड जो थे अच्छे कंडक्टर थे, कुछ सेमीकंडक्टर थे, कुछ इंसुलेटर थे। जब हम लोगों ने पहले दिन बात किया कि 3 तरह के सॉलिड होते, ये तो हम लोग जानते ही है कि मेटल कंडक्टर है और लकड़ी का टुकड़ा कंडक्टर नहीं है। और उन्होंने बोला कि सॉलिड को हम ऐसे मान ले रहे हैं, तो मान तो लिए, लेकिन अब लकड़ी के टुकड़े को अगर ऐसे मान लो कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और बहुत बढ़िया कंडक्टर है, तो वो कंडक्टर हो तो नहीं जाएगा। तो ये ड्रूड के मॉडल का प्रॉब्लम रहा। ड्रूड का मॉडल ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि कुछ सॉलिड जो कंडक्टर है, ठीक है, समझ में आया, लेकिन कुछ सॉलिड सेमीकंडक्टर है, कुछ इंसुलेटर है। तो ये थ्योरी उनका काम नहीं किया, लेकिन ये सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया था ऐसा कुछ मान के। तो कुछ चीज एक्सप्लेन भी किया, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन कर दिया, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फ्री तभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन क्या होता है, तो ये कुछ चीजें एक्सप्लेन किया। इसलिए हम लोग आज भी इस मॉडल को पढ़ रहे हैं, नहीं तो इस मॉडल को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जब ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा तो हम लोग क्यों पढ़े? बट फिजिक्स में जब हम चीजों को समझते हैं तो इट इज एन स्टोरी। तो स्टोरी को हम समझते हैं, धीरे धीरे कैसे समझना शुरू हुआ। तो पहले हम लोगों ने बोला कि कुछ अलग अलग तरह का मटेरियल है, फिर देखा कि कुछ कंडक्टर हैं, तो कंडक्टर क्यों है। तो ये सबसे पहले ड्रूड ने ये मॉडल दिया। ड्रूड को पहले से ये पता था कि एक डब्बे में अगर गैस भरा है तो गैस का नेचर क्या होगा। सो यूजिंग दैट मॉडल, दैट assumptions, ही ट्राइड टू एक्सप्लेन थिंग्स। तो कुछ चीजें एक्सप्लेन किया, कुछ नहीं एक्सप्लेन किया। तो हम लोगों ने यहाँ पे दिखा है क्या एक्सप्लेन किया, क्या नहीं एक्सप्लेन किया। फिर इट आल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मेटल। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब 12th में तुम लोगों ने पढ़ा है। तो बोला कि उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक का इतना होता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अभी मॉडल को हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े नहीं है, मॉडल के बारे में हम लोगों ने बस इतना पढ़ा है
कि ये माना और क्या एक्सप्लेन किया, क्या क्या नहीं एक्सप्लेन किया। और ये थ्योरी ड्रू और लॉरेंज ने डेवलप किया था, इसलिए इसको ड्रू लॉरेंज थ्योरी भी बोलते हैं। तो जो चीज ये लिखा है ये जनरल था, लेकिन अब तुम ये सोचो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग को एग्जाम भी करना है, तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और तुमको कैसे बताना होगा। तो लाइक इफ समबडी सेज कि टेल टू फेलियर ऑफ ड्रूड मॉडल में दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे वो फेल कर गया। तो तुम अगर इसको पढ़े और इसको जानते हो तो तुम बोल दोगे कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कुछ मेटल सॉलिड गुड कंडक्टर है, कुछ बैड कंडक्टर है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वन थिंग। दूसरा चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अब पैरामैग्नेटिक मेटल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दो अगर तुमसे पूछा जाए तो तुमको तीन यहाँ पे पता है, एंड यू विल बी एबल टू टेल 2 आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर कैसे देना है। तो हम लोग इसी में जो हम पढ़ रहे हैं उसी में क्वेश्चन होंगे, एंड आई विल ट्राई टू पुट थिंग्स जो हम लोग पढ़े उसी में से हो। लेकिन इसके साथ साथ और ओवरऑल देखो तो एक स्टोरी जैसे बन रहा है, और वो स्टोरी यही है कि कैसे कंडक्टर नॉन कंडक्टर हैं, और हम लोग धीरे धीरे कई सारी थ्योरी पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। अभी हम लोग इस हालत में हैं कि हमारी थ्योरी यही नहीं बता पा रही, कुछ सेमीकंडक्टर होते, कुछ वो होते इंसुलेटर होते, ऐसा क्यों है। लेकिन जस्ट दिस इज फर्स्ट थ्योरी, सबसे पहले ड्रूड और लॉरेंज ने इसको डेवलप किया था। तो इसके बारे में हम लोग ऐसे ही करके हम लोग स्टोरी की तरह चीजों को पढ़ेंगे, एंड लेटर ऑन व्हेन यू सी दिस देन यू अंडरस्टैंड। जो मैं बातें कर रहा हूं, अगर इफ यू आर लिसनिंग इट एंड इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, देन लेटर ऑन यू डोंट हैव टू मग अप थिंग्स। लाइक तुमसे पूछे फेराडे इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, तो तुम इसको 10 बार लिखो और खूब याद करो फिर वहां लिखो। दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। हम लोग का जो दिमाग है ये कोई मेमोरी डिवाइस नहीं है, हम रट के कहीं पे कुछ प्रोड्यूस करते। तो अगर तुमको कोई भी ऐसी पढ़ाई जा रही जिसमें तुमको रटना पड़ रहा है, दिस इज एक्चुअली अच्छा चीज नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है, मैं भी ऐसे रट रट के कई बार कुछ एग्जाम दिया हूं, तो हो सकता है कि किसी को ऐसे रटना पड़े, एग्जाम देना पड़े, दिस इज डिफरेंट थिंग। बट मैं ऐसे मानता हूं कि हम लोग का दिमाग जो है ये इसके अंदर बहुत स्पेशल कैपेसिटी है, ये सोच सकता है, ये समझ सकता है। दिस इज डिफरेंट देन ए पेन ड्राइव। आज कोई हम पेन ड्राइव में 20 किताब स्टोर कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दिमाग में तुम किताबें भरो या तुम कुछ रट के घूमो। तो ऐसी कोई पढ़ाई जिसमें रटना पड़ता है ये अच्छा पढ़ाई नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी पढ़ाई बंद हो जानी चाहिए जिसमें ऐसे रटना पड़ता हो, चीजें समझ में आए और हमको सोचने की टेक्निक डेवलप, हमारा दिमाग सोचने में ज्यादा सोच सके, ऐसा होना चाहिए। बट हमारे हाथ में हम लोग अभी ऐसी जगह पे तो है नहीं, ना तो तुम्हारे कहने से कोई ऐसी पढ़ाई बंद कर देगा, ना तो मेरे कहने से ऐसे पढ़ाना बंद हो जाएगा। तो हम लोग अभी इतने बड़े हैं नहीं कि हमारी बात कोई ऐसे सुने, लेकिन हम लोग इतने बड़े एक दिन बनेंगे तब हम कहेंगे कि हाँ ऐसी पढ़ाई बंद हो जानी चाहिए जिसमें रटाया जाता है। रटने वाला पढ़ाई कोई काम करनी, पढ़ाई ऐसे होना चाहिए जिसमें हमको समझ में आए और हम सोच पाए नए तरीके से। तो जो फील्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, आई कुड हैव जस्ट रेड इट आउट, लेकिन मैं तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे चीजें डेवलप हुई, और वो अगर समझ में आएगा तो ज्यादा बेहतर है। उसमें हम और भी तरीके से समझ पाएंगे कि देखो थ्योरी होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, एंड इन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे भी है कि हम कैसे सोच रहे हैं, कहाँ से सोचना शुरू होता है। जैसे ड्रू एंड लॉरेंज का जो थ्योरी है, दिस इज 150-200 साल पुराना थ्योरी है। तो उस टाइम बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो पता था उससे उन्होंने इसको पता करने की कोशिश किया। ऐसे ही हमारे टाइम में जब तुम आज बीटेक कर रहे हो, तुम आगे चल के कुछ काम करोगे, तो एट दैट टाइम यू विल सी देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू हैव टू थिंक। जैसे आज के टाइम में कोविड आया, एकदम से सब चीजें बदल गए, पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट जूम एंड ऑल, ये सब जो टेक्निक हो रहा है, तो ये सब चीजें डेवलप करें ना। देयर आर पीपल हु आर मेकिंग दीज टूल्स फॉर अस। हम लोग तो बना नहीं रहे, कोई बना रहा है। तो वो लोग कौन है? वो लोग है जो आज की प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से समझ रहे। ड्रूड एंड लॉरेंज ने उस समय की प्रॉब्लम को समझा, एंड हमारे समय में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव लॉट मोर प्रॉब्लम देन ड्रूड एंड लॉरेंज टाइम। Things are changing so fast, world is so dynamic. So what we have to learn from Dude and Lawrence, that how he started thinking, how he developed a theory,
सो हम लोग को ऐसे बनना है जो आज के टाइम में जब सिचुएशन बदल रहा है तो जो सोल्यूशन ला रहे हैं हम आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, देन वी विल बी यूजफुल, वी विल बी स्किलफुल, हमको जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर हम ऐसे रट लिए इसको फुल इलेक्ट्रॉन थ्योरी और एग्जाम में लिख दिया, नंबर भी आ गया, बट हम समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, then the problem will be like we will have degree, we will have no job, nobody will give us job because we don't think, we don't have required skills। तो जब भी हम जब कुछ जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, we should be thinking why we are doing it, and this is scientific attitude when we ask questions। जो भी पढ़ाई, जो भी टेक्निक तुमको क्वेश्चन पूछने से मना करता है, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू कैन लुक एट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये अच्छा है कि बुरा है। दीज आर थिंग्स लाइक इफ somebody doesn't allow you to ask question, it means it is not a good practice। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जिनसे सवाल पूछो तो गुस्सा हो जाते थे। गुस्सा हो जाना हो सकता है अच्छा चीज हो, मुझे नहीं दिक्कत है कि गुस्सा हो जाना, ठीक है, लेकिन अगर कोई तुमको सवाल ही नहीं पूछने दे रहा है, तुमको कुछ रटाया जा रहा है, तुमको कुछ मैं बना के दे दूं, लो इसको इसको गले में बांध लो और ऐसे हो जाएगा, तो दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। यही साइंस में और नॉर्मल दुनिया में अंतर है कि तुम जब प्रॉब्लम लेके जाओ तो साइंस व्हाट इट डज, साइंटिफिक एटीट्यूड इज टू वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस इज साइंटिफिक एटीट्यूड। बट इफ यू गो किसी बाबा के पास जाओ, बोलो तुमको प्रॉब्लम है, तो तुमको क्या देगा, एक ताबीज देगा, बोलेगा इसको गले में बांध लो, हो जाएगा। बट यू नो दिस थिंग्स, दिस प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अ गुड वे, साइंटिफिक एटीट्यूड इज गुड। तो इसीलिए हम लोग अभी जैसे साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस क्यों पढ़ रहे हैं और उसका क्या मतलब है, यही मतलब है कि हम उसके लिए वैसा एटीट्यूड डेवलप करें। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ रहे हैं, 200 साल पुराना थ्योरी है, मे बी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टुडे, बट स्टिल व्हाई वी नीड टू लर्न इट, ये क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे मैं तुमको पढ़ाऊं इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ो, तो तुम्हारे मन में भले तुम मुझसे ये ना पूछ पाओ कि ये क्यों पढ़े, बट तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि ये मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई। You took admission in computer science course and I'm teaching you physics. So first day I tried to explain why you need to learn physics, and then I'm telling you free electron theory हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको क्यों पढ़ा जाए। और जब हमको इंटरेस्ट होता है तब हम समझते सीखते। इफ यू एज्यूम दैट ये सब फर्जी है तभी भी कुछ नहीं सीखोगे, बट इफ यू एज्यूम इट इज इंपॉर्टेंट एंड देयर इज सम रीजन एंड आई एम देयर टू एक्सप्लेन and try my best to explain why you are doing it। So I think after this semester, you will have a lot of semesters, you will have a lot of courses, but after the course in you pass the exam, still if you remember things, if you get some skills out of it, then it is of real use। the semester exam pass करना है हमको, ये हमारा मतलब सिस्टम ऐसा है, you have to score good, but at the same time you have to learn things, you have to learn skills, you have to develop scientific attitude। so these are the things। so हम लोगों ने जनरल बात किया कि इन्होंने क्या क्या किया, ड्रूड के दिमाग में क्या चला। हम लोगों ने इस मॉडल के साथ ये समझा कि ड्रूड ने कैसे सोचा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही सोचने के लिए फ्रीडम होना चाहिए। साइंस इज ऑलवेज इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल, एज आइंस्टीन सेड। आइंस्टीन ने कहा कि इमेजिनेशन ज्यादा पावरफुल है रादर देन यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और आज के टाइम में इंफॉर्मेशन तो सब कुछ है, फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी तुम थोड़ा भी नेट पे सर्च करोगे तुमको सब मिल जाएगा। इट इज नॉट लाइक आई एम टेलिंग समथिंग न्यू, बट अगर हम इसके बैकग्राउंड में सोच पा रहे हैं कुछ, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमको क्लासेस रेगुलर करनी चाहिए। लेट्स बी स्पेसिफिक, थोड़ा सा हम लोग और आगे स्पेसिफिक होते हैं। तो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पोस्टुलेट्स क्या क्या है, पोस्टुलेट्स बोलते हैं उनको जो हम लोग एजम्पशंस करते हैं। जैसे मैं अभी तक इनको एजम्पशंस बोल रहा था, तो थ्योरी बनाने के लिए ड्रूड ने कुछ कुछ एजम्पशंस किए जो एग्जैक्टली सही नहीं थे। ये तो हमको पता है अभी कि ये सही नहीं था। इलेक्ट्रॉन को तुम गैस बोलोगे तो सही तो नहीं, लेकिन अभी कुछ चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, तो ठीक है, यू कैन से इलेक्ट्रॉन इज गैस, लेट अस एक्सप्लेन, जो तुम्हारा थ्योरी बना उससे एक्सप्लेन करो। तो एट दैट टाइम जो चीजें अभी हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, एट दैट टाइम थिंग्स वर नॉट दैट मच क्लियर। सो एट फॉर
दैट टाइम ड्रूड वाज क्वाइट अहेड ऑफ हिज टाइम। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें सोची जो आज के टाइम में शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब वो कोई सोच नहीं पा रहा था। तो हम लोग बात कर रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम लोगों ने ये बताया कि कुछ ड्रूड ने बहुत पहले ये सब सोचा था, जब इतना जानकारी हम लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में नहीं थी। He started at that time and he made some assumptions and he made a theory, and that theory could explain something and it couldn't explain few things. तो theory partially successful हुआ. It was not an successful theory because it was first attempt. It attempt to explain few things. That is why we think it is important. And eventually we will learn कि क्या क्या इसमें कमी था और हम लोग क्या क्या कैसे इसको ठीक किया गया, और जो आज का अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे आया, इसको समझने का एक प्रोसेस हम लोग सीखेंगे। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फुल स्टोरी टाइप में इसको सीखे, और दिमाग हम लोग का जो है वो स्टोरी को ज्यादा अच्छे से समझता है। बचपन में हमको जो स्टोरी सुनाई गई वो स्टोरी हमको पूरी पूरी याद रहती। सो दैट वे व्हेन वी आर लर्निंग थिंग्स वी शुड बी कनेक्टिंग and we should be developing a story kind of, so it will be better, you will remember it for long। ऐसा नहीं होगा कि ये कोर्स खत्म हो गया उसके बाद भी ये सब चीजें याद रहेंगी, और रटने से याद नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हम लोग पहले रटते हैं और वो बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि रटने वाला चीजें दिमाग सेव नहीं करता। दिमाग को लगता है ये फर्जी चीजें आ रही हैं, ये हमारे काम की नहीं। सो दैट इज वाई वी नीड टू डेवलप स्टोरी, वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर माइंड। जैसे कंप्यूटर साइंस तुम लोग पढ़ रहे हो, so you need to understand how computer works, then you will be able to achieve things which you want computer to do। आजकल देखो जैसे artificial intelligence, big data, there are a lot of things coming in, so because the people understand how it works, then they are able to find some answer for it। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि ये सब कैसे होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम लोगों ने बोला कि कुछ पॉस्टुलेट्स माने ड्रूड ने, कुछ एजम्पशंस किए, और वो एजम्पशंस के बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी बनाया। तो क्या क्या एजम्पशंस थे उनको हम थोड़ा टेक्निकल टर्म में इसको यहाँ पे लिखे हैं। दीज टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पे हाईलाइटेड है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाई वी आर हाईलाइटिंग इट। कुछ भी बिना मतलब नहीं होता है, कुछ अगर हाईलाइट किया गया है तो उसका कुछ मतलब है। So let us talk about what are the postulates of Drude model। Drude model में क्या बोला है? The outermost electrons of the constituent atom of metal are weakly bound with the atom. Hence these electrons get separated from their atom and move freely inside the substance and are called free electrons। तो free electron model है, मतलब free electron मतलब free electron होना चाहिए। तो कहाँ है free electron? किसको हम लोग free electron बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो मेटल है वो एटम से मिलकर बना है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो घूम रहे हैं वो बहुत वीकली बाउंड है एटम से, और ये इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो जाते हैं और ऐसे ही फ्री घूमते रहते हैं, इसीलिए हम इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो ये बात पूरा पूरा सही नहीं था, लेकिन तभी भी सही, मतलब उसका कुछ लॉजिक था। एंड assumptions we make like that। साइंस में जो हम कोई मॉडल बनाते हैं तो we make some assumptions, तो there are assumptions to make things simple। जैसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो बोले अर्थ गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल गोल घूम रहा है। So but the reality is not this। when you later on when you explore things you will find earth is not a sphere। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम जानते हैं वो एग्जैक्टली वो नहीं है, बट हम लोग उसको सिंपल बनाने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे स्फीयर मान लेंगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन करने में, बहुत सारा कुछ बताने में आसानी हो जाएगा। ऐसे ही इन लोगों ने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, देन यू कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल एंड हेंस we have like a molecule of gas enclosed in a container, hence it is called free electron gas। तो बोले कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल ऑफ गैस है कंटेनर में, इसलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन गैस बोल लिया।
अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उस टाइम इनको ये पता था अगर कंटेनर में गैस भरा है तो उसके बारे में काफी कुछ लोगों को उस टाइम पता था। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा पुराना है, जेम्स वाट ने हीट इंजन बनाया और बहुत सारा कुछ हुआ। एंड इफ यू कनेक्ट थिंग्स, द हीट इंजन हैज चेंज अ लॉट ऑफ। हीट इंजन, स्टीम इंजन जो आया, जो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, एक टाइम में तुम सोचो यूरोप पूरे दुनिया में हावी हो गया। अमेरिका भी यूरोप का, इंग्लैंड का गुलाम था, और वही सब लोग बाहर जाके फैल गए। उसका एक बड़ा रीजन कहीं ना कहीं ये भी था कि उन लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उनके वहां हुआ, नया नया चीजें बनाए। जैसे आज हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, जो तुम लोग जिसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, जिसमें तुम लोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही किसी टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1 हुआ, तब ये हीट इंजन वगैरह चीजें बनी। तो लोगों को थर्मोडायनेमिक्स ये सब का अंडरस्टैंडिंग ज्यादा था, तो ड्रूड ने इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि एक बॉक्स में गैस है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस बोल दिया। फिर दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इनसाइड द मेटल, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो बोले कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है और इन्हीं की वजह से कंडक्शन हो रहा है। ठीक है। So the free electrons in thermal equilibrium obey Maxwell-Boltzmann statistics. अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? तुम लोगों ने शायद इसका नाम सुना हो 10th 12th में। लेकिन जब कंटेनर में कोई गैस भरा होता है तो गैस की स्टडी करने के लिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन मिला के एक स्टैटिस्टिक्स बनाया, तो उसको बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। अब मैंने बोला कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती कंटेनर में गैस क्यों बोला? क्योंकि इनको उसके बारे में पता था। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स वाज ऑलरेडी देयर। तो जो तुमको पता होगा उसी से, जो चीजें नहीं पता है उसको जानने की कोशिश जब करोगे तो जो तुमको पता है उसी से करोगे। तो ड्रूड ने एग्जैक्टली वही किया। ड्रूड ने पहले बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, पहले फ्री कर लिया। फिर बोला कि ये इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहे हैं तो हम इसको कंटेनर में गैस की तरह मान सकते। फिर बोला कि अच्छा, जब ये गैस की तरह है तो इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे। ठीक है। व्हिच स्टेट्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है कि फ्री एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज हाफ kT। ये जो स्टैटिस्टिक्स है उसने ये बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है और उसमें टेम्परेचर T है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए वो नहीं बना था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ये गैस के लिए बना था। अगर कंटेनर में कोई गैस मॉलिक्यूल है और उसका टेम्परेचर T है तो बोलेगा उसका एनर्जी कितना है? बोलेगा हाफ kT है। हाफ kT, T इज टेम्परेचर, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक नंबर होता है, बोल्ट्जमैन ने इसको दिया था। ठीक है, हम लोग अभी इसके डिटेल में नहीं जाते हैं। सो जब हम लोगों ने मेटल को मान लिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें है, फिर इसको गैस मान लिया, और वैसे तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बताना मुश्किल था, जब गैस मान लिया तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स लगा दिया, और स्टैटिस्टिक्स लगा के हाफ kT एनर्जी पता चल गया। फिर इनसाइड द मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली विद हाई वेलोसिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ मेटल। तो बोला जो टेम्परेचर है, जैसे जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे, गैस में क्या होता है, गैस को अगर हम कोई कंटेनर में गैस भरे, उसका टेम्परेचर बढ़ाए तो जो गैस मॉलिक्यूल है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और वो हाई वेलोसिटी से रैंडमली मूव करने लगेगा। तो ड्यूरिंग दिस मोशन द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन चेंज इन अ वे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज जीरो। अब एक डब्बे में गैस भरा है, उसको हमने हीट कर दिया, तो गैस मॉलिक्यूल्स रेंडमली सब जगह घूमेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहीं घूम के चले जाएंगे, रहेंगे तो डब्बे के अंदर ही। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल मोशन विल बी जीरो, बट देयर इज अ लॉट ऑफ मोशन ऑफ गैस। तो सिमिलरली जब हम फिर इलेक्ट्रॉन गैस बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ एनर्जी, दे विल बी रेंडमली मूविंग, बट दे आर नॉट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, लाइक जिग जैग मोशन कर रहे हैं। काइंड ऑफ ड्रंकर्ड, कोई जैसे नॉर्मल सोचे कि कोई आदमी ऐसे है जो बहुत ड्रिंक किया हुआ है, बट इट इज नॉट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो एक स्टेप आगे चलता है, 2 स्टेप पीछे चलता है, फिर 2 स्टेप आगे चलता है, तो वो 2 घंटे चलेगा बट पहुंचेगा कहीं नहीं। सिमिलरली these electrons, they have a kinetic energy because of temperature, but they don't move any particular direction. ये assumptions हो रहे हैं। Then the last assumption, when the metal is kept in external electric field, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दिया हम लोगों ने मेटल पे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो
अब इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज होता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो चार्ज के हिसाब से बिहेव करेगा। तो क्या होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। अब 2 क्लासेस हम लोगों ने लगभग कर लिया है, हम लोग अभी बहुत एलिमेंट्री तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो कि बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, वो इवेंचुअली वी हैव टू स्पीड अप। बट शुरू में हम लोग कनेक्ट हो पाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। अब इस लेवल पे अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो यू कैन पुट इट हियर। वी हैव 2-3 minutes. I will try to implement your suggestions while taking other classes. हाँ सर वो सर नोट्स सर कैसे बनाएंगे सर, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। ओके, नोट्स कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग जो ये मैं लेक्चर स्लाइड्स बना रहा हूँ, अगर तुम देखोगे तो देर आर थिंग्स विच आर रिटन प्रॉपरली ऑन दिस, सो आई विल ट्राई टू मेक ऑल लेक्चर नोट्स तुम्हारा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं उसको छुपा के नहीं रखूंगा, आई विल शेयर दीज स्लाइड्स विद यू। सो व्हेन वी कवर, जैसे फील्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम लोगों ने पूरा कर लिया, तो फील्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी का जो प्रेजेंटेशन मेरा रहेगा मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ कुछ बुक्स हैं जो रिकमेंडेड हैं, तो वो किताबें देख सकते हैं, और नेट पे जैसे तुम फील्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ के उसका भी नोट्स बना सकते हो। बट रेफरेंस के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्राई टू लिमिट थिंग्स इन दैट डिस्कशन, एंड व्हाट एवर द क्वेश्चन कम्स, जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं कोशिश करेंगे कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और तो नोट्स का ऐसा ही सिस्टम है। अब अगर अभी तुम सोचो कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम लोग पढ़ना शुरू किए, तो नोट्स बनाना चाहते हो, देन यू कैन ट्राई टू सी सम बुक, और जो मैं पढ़ाया उसके बेसिस पे कुछ नोट्स बनाओ। और क्लास जैसे पहले 12th तक क्या होता है, बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं या क्लास में पढ़ते हैं, वहीं साथ में नोट्स बनाया जाता है। अभी तुम लोग यूनिवर्सिटी में हो, डिग्री कर रहे हो, तो नोट्स बनाने का प्रक्रिया अच्छा है, बिकॉज somebody learn by making notes। तुमको बहुत सारे कोर्सेज करने हैं तो तुमको अलग अलग नोट्स बनाने पड़ेंगे। बट ये जो बहुत सजा सजा के हम लोग नोट्स बनाते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत काम का चीज नहीं होता है। बट एवरीबडी हैज इज ओन टेक्निक। आई विल शेयर माई लेक्चर नोट्स, जो मैं नोट्स पढ़ाता हूँ तुमको पढ़ाने के लिए, वो मैं तुमको दूंगा, किताबें तुमको बताऊंगा, एंड यू आर फ्री टू मेक योर नोट्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, you can always write personal message on my WhatsApp. I will try to explain you। और बहुत सारा नेट पे भी अवेलेबल है। आप भी, तुम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो तुमको कंप्यूटर में तो इजी होना ही है, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, और एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। सो यू कैन मेक नोट्स, यू मेक एक कॉपी तो बनाना ही पड़ता है, एक कॉपी बनाए, उसमें चीजों को लिखें, समझें। सो बट इट इज फ्री, कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से कि तुम ऐसे नोट्स बनाओ। बट अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछो, और नोट्स तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। यू विल फाइंड एनी, ये सब चीजें बहुत स्टैंडर्ड है, तुमको नेट पे मिल जाएगा। और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, किताबें भी कुछ कुछ उसमें लिखी हैं, लेकिन जितना समझ में आएगा उतना नोट्स बनेगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स, कोई और कोई क्वेश्चन है किसी को? सर कोई कॉमन बुक का नेम बता दिए। ओके, कॉमन बुक का एक प्रॉब्लम यह है कि ये जो कोर्स है, जैसे तुम लोग इसका अगर कोर्स देखोगे तो ये बड़ा स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया है। हम लोग उनसे तो कह नहीं सकते कि भाई ऐसा कोर्स तुम क्यों डिजाइन कियो, लेकिन पहले जैसे बीटेक में कॉमन कोर्स चलता था पुराने टाइम में, अगर तुम 2-3 साल पीछे जाओगे तो एक कोर्स चलता था, उसमें सबको पढ़ाया जाता था, उसके लिए पब्लिशर्स ने किताबें बना ली थी। अब ये कोर्स कुछ स्पेशल टाइप का है, तो एक्चुअली इसका कोई एक किताब नहीं जिसमें सारा कुछ मिल जाए, तो हम लोग को भी अलग अलग मटेरियल ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना पड़ता है। वी गो, वी चेक इंटरनेट, वी गो टू डिफरेंट बुक्स, वी एक्सप्लोर दिस एम आर सिन्हा का जो लेक्चर नोट, जो क्लास है वो, ऐसे कई सारा से मिलके मैं खुद ही नोट्स बनाता हूँ। कोई एक किताब इसके लिए पर्टिकुलरली है नहीं। और पिछले 2 ही 3 सालों से ये कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशल शुरू हुआ, तो ये अच्छी बात है कि सबको कॉमन कोर्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, तुमको थोड़ा जो चीजें तुम्हारे काम की है वो पढ़ाई जा रही, मैकेनिकल वालों को जो उनके काम का है वो पढ़ाया जा रहा है। दिस इज गुड थिंग। बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी बुक इन द मार्केट जो ऐसे रेडीमेड नोट्स की तरह हो, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। सो आई एम ऑल्सो फेसिंग दैट प्रॉब्लम कि मैं भी बहुत सारे जगह से, मुझे भी एक किताब मिल जाए तो शायद मुझे भी पढ़ाना आसान हो। हालांकि मैं पढ़ाने में अपने तरीके से भरोसा करता हूँ, तो आई डोंट फॉलो ब्लाइंडली एनीथिंग।
लेकिन एक किताब हो तो अच्छा बात है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा किताब कोई मार्केट में स्पोर्ट्स के लिए अभी है नहीं, और जैसे ही मुझे कोई मिलेगा आई विल शेयर, सबसे पहले मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अभी नहीं पूछना है तो बाद में भी पूछ सकते हो। और आई होप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक स्टोरी तरह से बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि तुमको सबको समझ में आ रहा है और हम लोग थोड़ा धीरे धीरे ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं। कनेक्टेड होंगे तभी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इट सीम्स नाउ वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड मैं ये कोशिश करूंगा कि हम लोग टाइम से शुरू करें, और पहले 2-4-5 मिनट में जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसको समराइज करें, फिर इस क्लास में क्या पढ़ना है उसको पढ़ें, और लास्ट में फिर 2-4-5 मिनट में उस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया ये मैं बताऊं, एंड देन आई विल ट्राई टू पुट टेक सम क्वेश्चंस इफ देयर। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कोर्स बहुत ज्यादा है, टाइम हम लोग के पास बहुत कम है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू डू इट इन दैट सिस्टम। तो उससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बना रहेगा और समझ में आएगा।